हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी। डिक्टेशन शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। और साथ में अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ या इन आउटलाइंस की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपने क्या करना है कि हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो क्या होगा कि आप हमारे साथ कुछ भी, अगर आपको डिस्कशन वगैरह करना हो या कुछ टफ वर्ड्स लग रहे हो तो आप उनको हमारे साथ वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो पीडीएफ है इस मैटर की, और सिमिलरली जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ और डिक्टेशन देंगे तो उन मैटर्स की पीडीएफ वगैरह जो है आपको कहाँ पे मिलेंगी? टेलीग्राम पे मिलेंगी, ठीक है। एंड एक और इशू है जो बार बार आप में से बहुत सारे बच्चे फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं कि आपकी स्पीड, जो मैटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई से मेरा मतलब है कि 75 से 80 वर्ड्स पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा। तो देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब इस डिक्टेशन को अटेम्प्ट करना है एज अनसीन, तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है कौन सी स्पीड पे? 0.8 या फिर 0.9x स्पीड पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जब उसको इस डिक्टेशन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं या क्या आपकी एक्यूरेसी रही है। तो उसके बाद आप देखो, साथ में यहाँ पे आपको एक साइड जैसे इंग्लिश में मैटर है, ठीक है, और दूसरी साइड आपको यहाँ पे उसी का शॉर्ट हैंड आउटलाइंस बना के दी हुई है। तो इनको प्रैक्टिस करना है, और इनको प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने जिस स्पीड पे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उस स्पीड पे आपने इसको लिखने की कोशिश करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रेजुअली स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो चलो, विदाउट फर्दर डिले हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Global affairs remain dynamic as geopolitical tensions and economic shifts continue to shape the world. Full stop. The ongoing conflict between Russia and Ukraine remains a major concern, with international efforts focused on diplomatic solutions and humanitarian aid. Full stop. Meanwhile, relations between the United States and China continue to influence global trade and technology policies, particularly in areas like semiconductors and artificial intelligence. Full stop. In the economic sphere, the International Monetary Fund has projected moderate global growth, though inflation and energy prices remain challenges for many countries. Full stop. Developing nations are especially vulnerable to debt pressures and climate related disruptions. Full stop. Climate change remains a top priority worldwide. Recent international discussions under the United Nations framework emphasize the urgent need to reduce carbon emission and transition to renewable energy. Full stop. Extreme weather events, including floods and heat waves, having highlighted the growing impact of environmental changes. Full stop. In India, economic growth continues to show resilience, supported by infrastructure development and digital innovation. Full stop. Government initiatives focusing on infrastructure and technology aim to strengthen the country's
global competitiveness. Full stop. India's role in global forums like the G20 has also highlighted its increasing influence on the world stage. Full stop. In science and technology, advancements in artificial intelligence and space exploration are making headlines. Full stop. Private companies and national agencies are accelerating efforts to explore space, while AI is being integrated into industries such as healthcare, education and finance. Full stop. However, concerns regarding data privacy and ethical use of technology remains significant. Full stop. Sports also continue to capture global attention. Full stop. Major tournaments and leagues are drawing large audiences, promoting international unity and competition. Full stop. Meanwhile, athletes worldwide are using their platforms to raise awareness about social issues. Full stop. In conclusion, current affairs reflect a world in transition, where cooperation, innovation and sustainability are key to addressing global challenges and ensuring a suitable future. तो suitable नहीं है, ये stable future है. ठीक है, consider it as a stable future. ठीक है, तो आई होप आपने ये अच्छे से लिखा होगा, है ना. ये कोई इतनी टफ डिक्टेशन नहीं थी और स्पीड भी मॉडरेट स्पीड थी. तो आपने क्या करना है कि इस डिक्टेशन को कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है ना, जब तक आपको लगे कि मैं इसको फ्लुएंटली 95% अबव एक्यूरेसी के साथ नहीं लिख पा रहा हूँ. ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको आप 70 to 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे. ठीक है, एंड रेस्ट आपको मालूम है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है. वीडियो को अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि आप इन एफर्ट्स को लाइक कर रही हैं, आप इन वीडियोस को पूरा देख रहे हो या क्या. मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को पूरा देख पा रहे हो कि नहीं. ठीक है, उसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपको इन मैटर्स की पीडीएफ और अदर डिस्कशंस हम करते हैं, जो कि आप कर तो नहीं रहे हो, बट स्टिल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे भी मटेरियल प्रोवाइड करवाता ही रहूँ. ठीक है, तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट डिक्टेशन में. कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड.